Good evening and happy Sabbath. I, on behalf of Galganagri School, would like to welcome one and all in this Vesper service. Let us hold on our head as we seek the Lord in prayer. Almighty Father in heaven, we thank you for this privilege that thou hast given us to gather together in thy name from different places to worship you and to praise thee. As we submit this program into thy hand, give the speaker, and the program that has been arranged, may it bless each and every one of us, and may it help us to enrich us spiritually, that we could understand more about thee, and we could come closer to thee, and we could sacrifice our life for thy service. As thy coming is near, help us to prepare ourselves, and may we be thy servant to spread your gospel in everything that we do. We submit this program into thy hand. Bless each and every one of us. For his mercy we pray in Jesus' name. Amen. To begin our worship, we'll sing some praise of God. For the first one, we'll sing song number 286, Wonderful Words of Life. Sing them over again to me, wonderful words of love. Every more of their beauty sing, wonderful words of love. Words of love and beauty, gives me faith and beauty. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of love. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of love. Christ the blessed one gives to all, wonderful words of love. Sweeter is to the loving Lord, wonderful words of love. Oh, so freely given, moving us to heaven. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of love. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of love. Sweet lady, golden gospel go, wonderful words of love. Over burden and peace to all, wonderful words of love. Jesus, always Savior, sanctified forever. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of love. Beautiful words, wonderful words, wonderful words of love. For the next song, we'll sing song number 430, Joy by and by. Oh, beauty, joy when the world is done. Joy when the reapers gather home, bringing the gifts that heralds unto the new Jerusalem. Joy, joy, every joy.
if someone is saying it's not an easy road. It's not an easy road. We are traveling to heaven. For many other dangers we meet.
1529 में स्पायर की दूसरी सभा यहाँ बुलाई गई और पहली सभा 1526 में की गई थी, जिसने प्रत्येक राज्य के धार्मिक मामलों में स्वतंत्रता दी थी। 1529 में सभी जर्मन राजकुमार यहाँ एकत्रित हुए चर्च के प्रतिनिधियों के साथ। चर्च की इच्छा सुधार के विधर्म को कुचलने की थी, पहले शांतिपूर्व तरीके से, लेकिन जरूरत पड़ने पर पूरी ताकत का उपयोग करके। एक बात जो प्रस्ताव में की गई थी वह थी धर्मांतरण पर रोक। सुधार के पक्ष में रहने वाले राज्य उस तरह रहना होगा और जो पक्ष नहीं रखते थे वे वैसे ही रहेंगे जैसे वे थे। यदि इस फरमान को लागू किया जाए तब सुधार का विस्तार नहीं किया जा सकता था जहां अभी तक इसका ज्ञात नहीं था, न ही उस ठोस नींव पर स्थापित किया जा सकता जहां ये शुरू हुआ था। दांव पर लगा प्रमुख मुद्दा था अंतरात्मा की स्वतंत्रता। जैसे ही वे इस बात पर चर्चा करने के लिए मिले कि वह इस प्रस्ताव के साथ क्या करेंगे, पूरी दुनिया के प्रमुख मुद्दे सामने रख दिए गए। क्या रोम को अंतरात्मा को मजबूत करने और स्वतंत्रता जांच को मना करने का अधिकार था? जैसे कि उन्होंने हाल में इतिहास को देखा और उस महान बलिदान को देखा जो बहुतों ने इस मकाम तक पहुंचने के लिए किया था, और उन्होंने इस बात के विपरीत प्रस्तावित नागरिक स्वतंत्रताओं पर प्रमुख प्रतिबंध के साथ राजकुमारों ने कहा, आइए हम इस फरमान को अस्वीकार करें। अंतरात्मा के मामलों में बहुमत की कोई शक्ति नहीं है। उन्होंने देखा कि राज्य की भूमिका अंतरात्मा की स्वतंत्रता की रक्षा की थी और ये धार्मिक मामलों में उसकी भूमिका की सीमा भी यही थी। उन्होंने अपने जवाब में विरोध शब्द का इस्तेमाल किया और यहीं से हमें आज प्रोटेस्टेंटवाद शब्द मिलता है। लेकिन हमारे लिए उस शब्द की पृष्ठभूमि को समझना महत्वपूर्ण है, ये जानने के लिए कि एक प्रोटेस्टेंट वास्तव में क्या है। उन्होंने कहा कि इस विरोध में रखे गए सिद्धांत में प्रोटेस्टेंटवाद के मूल तत्व थे। उन्होंने मनुष्य के साथ दुर्व्यवहार का विरोध किया आस्था के दो क्षेत्रों में। सबसे पहले सिविल मजिस्ट्रेट की घुसपैठ और दूसरा चर्च का मनमाना अधिकार। इसके बजाय प्रोटेस्टेंट ने अंतरात्मा की शक्ति को सिविल मजिस्ट्रेट के ऊपर रखा और परमेश्वर के वचन का अधिकार दिख रहे कलीसिया पर। उन्होंने दिव्य बातों में नागरिक शक्ति को खारिज कर दिया। लोगों को प्रोत्साहित करना, जैसा कि अधिनियमों की पुस्तकों में था, मनुष्यों की बजाय परमेश्वर की आज्ञा मानना। वे समझ गए कि यह राज्य की भूमिका है नागरिक स्वतंत्रताओं की रक्षा के लिए और न ही जनता के धार्मिक कार्यों को निर्धारित करने के लिए। हमारे समय के युग में इस महान प्रोटेस्टेंट सिद्धांत से एक विस्तृत प्रस्थान है बाइबल, और बाइबल केवल विश्वास के कर्तव्य के निर्माण के रूप में। हमें परमेश्वर के वचन का वही अटल पालन करने की आवश्यकता है जैसा कि सुधार के इस संकट में प्रकट हुआ था। यदि ये सारे राजकुमार दबाव में झुके होते और अब तक हासिल की गई सफलता का आनंद लेने का प्रयास करते ताकि अधिकारियों के साथ सुरक्षा पक्ष प्राप्त कर सके, तो आंदोलन नष्ट हो गया होता। वह समझते थे कि सामने बड़े मुद्दे थे और उस समय से दुनिया भर के विश्वासी उनके दृढ़ काम का लाभ उठाया है। जबकि मार्टिन लूथर का नाम अच्छी तरह से दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन इन राजकुमारों के नाम बहुत ज्ञात हैं। इतिहास में उनकी जगह फिर भी महत्वपूर्ण है। हम वास्तव में समझ सकते हैं कि प्रोटेस्टेंट होने का क्या मतलब है। परमेश्वर के वचन का अधिकार और धार्मिक मामलों में अंतरात्मा की शक्ति।
कैसे मैं जीवू रे, हे प्रभु कैसे मैं जीवू रे, तोर बिना दुनिया अंधार लागे रे, तोर बिना दुनिया अंधार लागे रे। ना तो भूलाबे प्रभु ना तो छुड़ाबे रे, ना तो भूलाबे प्रभु ना तो छुड़ाबे रे, तोर बिन दुनिया अंधार लागे रे, तोर बिन दुनिया अंधार लागे रे। हे प्रभु कैसे मैं जीवू रे, हे प्रभु कैसे मैं जीवू रे, तोर बिना दुनिया अंधार लागे रे, तोर बिना दुनिया अंधार लागे रे। Thầy गेलो मोय, थक गेलो मोय, इस दुनिया से मैं तो टूट गेलो मोय। नखे कोई सहारा नखे कोई भरोसा, तोर बिना रे प्रभु कोई नहीं हमारा। हे प्रभु कैसे मैं जीवू रे, हे प्रभु कैसे मैं जीवू रे, तोर बिना दुनिया अंधार लागे रे, तोर बिना दुनिया अंधार लागे रे। अब भर दुनिया में मैं तो अकेला, न के कोई सहारा न के कोई दुलारा। कैसे जीऊँ मैं कैसे रहूँ, तोर बिना रे प्रभु कोई नहीं हमारा। हे प्रभु कैसे मैं जीवू रे, हे प्रभु कैसे मैं जीवू रे, तोर बिना दुनिया अंधार लागे रे, तोर बिना दुनिया अंधार लागे रे। जय मसीह की और आप सबों को हैप्पी साबत। आज इस संध्या के समय में मैं आप लोगों के सामने हो सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है, उसका दया है कि मुझे इतना सुंदर मौका दिया है। हम इंसान जो है अपना जीवन जो है अनिश्चित है, कब क्या होगा हम नहीं जानते हैं। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह के कारण हम जीवित पाए जाते हैं। और आज इस संध्या के समय में मैं मानता हूँ कि मैं अयोग्य हूँ, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने मुझे इतना सुंदर मौका दिया है। आज इस संध्या के समय में मैं एक विषय लेकर आता हूँ जो कि हम पाते हैं निर्गमन 20:17 में, जो कि 10वां आज्ञा है, जिसमें कहता है कि तू लालच ना करना। लेकिन आज यदि हम देखते हैं हमारे जीवन में ये जो लालच जो है एक हिस्सा बन गया है। चलिए हम वचन में आगे बढ़ने के पहले हम एक छोटा दुआ करते हैं। महान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं सारे आशीष के लिए। आज तक हमें जीवन दिया है, जीवित रखा है। पिता परमेश्वर, हम तेरे चरणों में आने योग्य हम नहीं, लेकिन तेरा प्रेम, तेरा करुणा अब तक हमारे जीवन में है, इसलिए हम जीत पाए जाते हैं। इस वक्त हम अपने आप को तेरे हाथों में हम सौंपते हैं पिता।
तो तेरे आत्मा से हमें परिपूर्ण कर दे, ताकि हम जो वचन मैं रखने जा रहा हूँ पिता, वो एक आशीष का कारण होने पाए। बाकी समय तेरे हाथ में सौंपते हैं, गुनाहों को क्षमा कर यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जैसे मैंने कहा, आज का मेरा शीर्षक जो है लालच ना करना। आज यदि देखा जाए संसार में, लालच जो है इंसान का जीवन का एक अंग बन गया है। हमारे जीवन में कितने भी चीज़ें हो, फिर भी हम जो है लालच करते हैं। इस लालच से हम बच नहीं सकते हैं। हम तभी बच सकते हैं इस लालच से जब हम अपने आप को पूरी तरह से मसीह के चरणों में हम हवाले करें। हम वचन कहता है कि लालच मत कर। यदि हम देखते हैं इस 10 आज्ञा में से ये 10वां आज्ञा को लालच ना करना कहता है हमें, और यदि हम लालच करते हैं, हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। यदि हम एक आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है कि अगला आज्ञा को फिर उल्लंघन करने के लिए। इसलिए हमें बहुत ही सावधान से अपना जीवन को व्यतीत करना चाहिए, ताकि हम किसी भी आज्ञा का उल्लंघन ना करें। हम क्योंकि हमें पता है, हम जानते हैं, वचन में लिखा है कि आज्ञा का उल्लंघन ही पाप है। और यदि हम एक आज्ञा को उल्लंघन करते हैं तो हम और अन्य आज्ञा को उल्लंघन करने में काफ़ी आसान हो जाता है हमारे लिए। आज हम देखेंगे एक ऐसा घटना जो कि हमें सिखाता है कि लालच कितना बुरा हो सकता है हमारे जीवन में। लालच सचमुच में हमारे जीवन में बुराई ही ले आता है। हम जाएंगे 2 राजा 5 का 1, जहां हम नामन को हम पाते हैं। नामन का जीवन को हम सारे लोग जानते हैं। नामन एक ऐसा व्यक्ति था, कहा जाता है कि नामन सेनापति, जो कि अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था। वह शूरवीर था, परंतु कोढ़ी था। हमने देखा यहाँ नामन जो है वो एक सेनापति था, और उसने बहुत सारे ऐसे युद्ध में विजय हासिल किया है, लेकिन वो एक कोढ़ी था। हम आगे इस कहानी को यदि देखें, ये नामन जो है इस कोढ़ी रोग से चंगाई प्राप्त करता है। अब कैसे चंगाई प्राप्त करता है उसको भी हमने देखा है और हम जानते हैं सारे, लेकिन हम जो शीर्षक को लेकर आए हैं, लालच ना करना, उस पर हम जाएंगे। और इसलिए हम जाएंगे 5 का, यदि हम पढ़ें 15 से पढ़ेंगे, 2 राजा 5 का 15 से हम आगे पढ़ेंगे। कहता है, तब वह अपने सब दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर। यहाँ पर हम देखते हैं कि नामन जो अपना रोग से चंगाई प्राप्त करने के बाद वो एलीशा के पास आता है, उसको उपहार देने के लिए, उसको भेंट देने के लिए हम ये पाते हैं। लेकिन यहाँ कहता है 16 में, एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन के शपथ मैं कुछ भेंट ना लूँगा। और जब उसने उसको बहुत विवास किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। हमने देखा एलीशा जो है ईश्वर का भक्त, एक दास है यहाँ, जिसने नामन को चंगाई दिलाया परमेश्वर के समर्थ शक्ति से। और यहाँ नामन जो है जब चंगाई पाता है, उसके बाद वो आता है एलीशा के पास उसको भेंट देने के लिए। लेकिन यहाँ एलीशा जो है स्पष्ट तौर से उसने इनकार कर देता है कि उसको कोई भेंट नहीं चाहिए। हम 17 में पाते हैं, तब नामन ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले, और यूँ मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूं। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था। अब हम यहाँ देखते हैं, यहाँ जो नामन जो है, जो कोढ़ रोग से चंगाई प्राप्त कर चुका था और एलीशा के पास आता है उसको भेंट देने के लिए, लेकिन एलीशा जो है भेंट को इनकार कर देता है। और इसके बाद जब नामन चले जाता है, यहाँ 19 में हमने जैसे पढ़ा, कहता है उसने उनसे कहा, कुशल से विदा हो। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा। अब यहाँ गौर कीजिए, जो शीर्षक मैंने रखा आज, लालच ना करना, उस पर हम आते हैं यहाँ पर 20 में, कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक
गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूँगा। हम देखते हैं यहाँ पर एलीशा का एक सेवक गेहजी, जिनका मन में एक लालच उत्पन्न होता है और उसके कारण उसने सोचा कि हम उसके पीछे दौड़कर जाए और कुछ ना कुछ हम ले लें। हम 21 में पढ़ते हैं, तब गेहजी नामान के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रात से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एफ्राइम के पहाड़ी देश से भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए 1 किकर चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। हम यहाँ देखते हैं जो गेहजी नामान के पीछे दौड़कर जाता है, जो कि उनका लालच और लोभ के कारण नामान से वो भेंट लेने के लिए दौड़ता है। और वहाँ जब जाता है वहाँ हम देख पाते हैं कि एक झूठ का गवाही या झूठ बोलना पड़ता है कि उसको एलीशा ने भेजा है कि ये भेंट लेने के लिए, लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। उसका लालच के कारण, उसका लोभ के कारण उसको और एक आज्ञा का उल्लंघन करना पड़ा, उनको झूठ बोलना पड़ा। हम देखते हैं यहाँ पर 23 में, नामान ने कहा, खुशी से 2 किकर ले लो। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किकर चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उसके आगे आगे ले चले। यहाँ कहता है आगे, जब वह टीले के पास पहुंचा तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया और चले गए। हम देखते हैं यहाँ पर 2 व्यक्ति जो कि नामान के द्वारा भेजा गया था गेहजी के साथ में इन सारे भेंटों को पहुंचाने के लिए, ये 2 वापस चले जाते हैं और गेहजी जो है उस भेंटों को ग्रहण करके अपने घर में वो रख देता है। आगे 25 में कहता है, तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उनसे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। अब हम यहाँ देख सकते हैं, पहली बात, गेहजी जो है एक लोभ और लालच के कारण उसको झूठ बोलना पड़ा। यहाँ हम वही बात पाते हैं दोबारा कि जब पूछा जाता है गेहजी को कि तू कहाँ गया था, तू कहाँ गया था, तो यहाँ कहता है गेहजी, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। 26 में कहता है, उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून या दाख की वारियाँ, भेड़ बकरियाँ, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का खोड़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिम सा श्वेत कोड़ी होकर उसने सामने से चले गया। हम यहाँ स्पष्ट रूप से पाए हैं कि जब हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, हमारे जीवन में हम मुसीबत ले आते हैं। हमने देखा गेहजी लोभ और लालच के कारण वो नामान के पीछे दौड़ चला गया उस भेंट या उपहार को लेने के लिए, और सिर्फ इतना ही नहीं, उसने और भी आज्ञा का उल्लंघन किया, उसको झूठ कहने में मजबूर हो गया और उसने झूठ कहा जो कि और एक आज्ञा का उल्लंघन हो। सिर्फ इतना ही नहीं, हम देखते हैं उसका नतीजा क्या होता है। जब हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो निश्चित तौर से हमारे जीवन में हम मुसीबतों को हम ले आते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा गेहजी अपने जीवन में नामान का खोड़ को ले आया, क्योंकि उसने लोभ किया, लालच किया, झूठ उसने कहा, और उसका नतीजा यही हुआ कि नामान का खोड़ जो रोग था वो गेहजी पर आ गया। इससे हम समझ सकते हैं आज्ञा का उल्लंघन यानी कि लोभ या लालच करना, यानी कि झूठ गवाही देना कितना भयानक हो सकता है। हम अपने जीवन में अपने आप जो है हम मुसीबत को हम ले आते हैं और कई बार हम सवाल करते हैं परमेश्वर से, क्यों मुझ में ये समस्या, क्यों मेरा ही जीवन में ये समस्या। लेकिन भाइयों और बहनों, आज हम एहसास करते हैं जब हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, हम अपने आप में समस्या हम ले आते हैं। हम समस्या खुद ब खुद ले आते हैं
और ये भी हमने देखा, जब एक आज्ञा का उल्लंघन करते हैं हम, तो दूसरा आज्ञा उल्लंघन करने में हमें काफ़ी आसान हो जाता है। आसान तरीके से हम और बाकी आज्ञाओं को हम क्या करते हैं, उल्लंघन करते हैं। जिस तरीके से गेहजी ने लालच किया धन के प्रति, उसके नतीजे से उसको झूठ बोलना पड़ा। उसके बाद हम देखते हैं कि नामन का कोढ़ रोग उसमें आता है, समस्या। हम देख सकते हैं क्या ही भयानक घटना हो सकता है हमारे जीवन में। इस वचन से हम यही सीखते हैं कि परमेश्वर का आज्ञा जो दिया गया है हमारे जीवन में, उसको हम कभी उसको उल्लंघन ना करें, बल्कि हम आज्ञा को हम माने, पालन करें, ताकि हमारा जीवन में एक शांति, एक आशीष हमें प्राप्त हो सके। परमेश्वर जो आज्ञा दिए हैं हमें, परमेश्वर चाहता है कि हम आशीषित हो, हम एक अच्छा जीवन हम व्यतीत करें। परमेश्वर कभी नहीं चाहते कि उनके लोग, उनके दास, उनके जीवन में परेशानी हो, बल्कि वो चाहता है कि एक खुशहाली, एक आशीषित जीवन प्राप्त करें। लेकिन हमने स्पष्ट रूप से हमने देखा, जब हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो खुद ब खुद हम समस्या को हम निमंत्रण देते हैं अपने जीवन में, जैसे कि हमने गेहजी का जीवन में देखा। हम और एक घटना को देखेंगे जो कि हम पाते हैं प्रेरित 5 में पाते हैं। जब लोभ या लालच करते हैं हम, तो उसका नतीजा कितना भयानक हो सकता है। गेहजी का जीवन में नामन का कोढ़ रोग जो है गेहजी को मिला, कितना बड़ा भयानक नतीजा। अब अगला घटना को देखेंगे जो हम पाते हैं प्रेरित क्रिया 5 में हम पाते हैं। यहाँ पर लिखा गया है, हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हम यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हनन्याह और सफीरा जो कि अपना संपत्ति को बेच डाला और कुछ हिस्सों को पतरस या प्रेरितों के चरणों में ले आए। तब पतरस उनसे सवाल करता है, कहता है, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। 4 में कहते हैं यहाँ पर, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वास में ना थी। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी, तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। जब कभी भी हम किसी इंसान से हम झूठ बोलते हैं, हमें एहसास होना चाहिए, और ये हमें मालूम भी है कि हम परमेश्वर के खिलाफ भी हम झूठ बोलते हैं। और यही होता है यहाँ पर हनन्याह के जीवन में। उसने प्रेरितों से झूठ नहीं बोला, बल्कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के खिलाफ उसने झूठ बोला। यहाँ आगे कहता है, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। हमने देखा यहाँ पर हनन्याह जो कि झूठ उसने कहा, सिर्फ झूठ नहीं, उसने लालच किया, अपना धन संपत्ति को जो कि बेच डाला था, उसका कुछ ही अंश को प्रेरितों के चरणों में ले आता है। जब सवाल किया गया, क्या इतना ही में आपने बेचा, उसने कहा हाँ इतना ही में, जबकि उसने स्पष्ट झूठ कह रहा था। और यह पतरस कहता है, तूने क्यों झूठ बोला, क्यों झूठ बोला तूने, सवाल किया पतरस ने। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और साफ सुनने वाले पर बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। अब यहाँ देखे हमने कि लोभ, लालच और झूठ का नतीजा मृत्यु, प्राण गंवाना पड़ता है, जैसे हनन्याह का दशा हुआ यहाँ पर। आगे यदि हम देखें 7 में, लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? उसने कहा, हाँ इतने ही में। पतरस ने उससे कहा, या क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा को परीक्षा के लिए एकाक किया है। देख, तेरे पति के गड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए, और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर लेकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारे कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हमने देखा यहाँ पर क्या ही भयानक नतीजा हो सकता है जब हम लोभ या लालच करते हैं।
सिर्फ इतना ही नहीं, यदि हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं हमारे जीवन में उसका नतीजा भयानक हो सकता है। यहाँ पर हमने देखा हनन्याह और सफीरा झूठ और लालच के कारण अपना प्राण गंवाना पड़ा। भाई और बहनों, आज इस संध्या के समय में इस वचन के द्वारा हमें एहसास दिलाया जाता है कि हम लालच ना करें, लोभ ना करें हम, क्योंकि हम इसको पाते हैं 10 आज्ञाओं में हमें दिया गया है। 10वां आज्ञा कहता है कि लालच ना करना। लालच का नतीजा इतना भयानक हो सकता है कि हम अपने जीवन में समस्या ला सकते हैं। और हम सवाल ये भी कर सकते हैं, क्यों प्रभु मेरा जीवन में समस्या, क्यों क्यों क्यों? लेकिन हमें अपना हृदय, अपना मन को टटोलना चाहिए। हम कहाँ पर भटके हुए हैं, हम कहाँ दूर गए हैं परमेश्वर से, कहाँ पर हमने उसका उल्लंघन किया है आज्ञा को। हमने जैसे सीखा, यदि हम एक आज्ञा का उल्लंघन करते हैं हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है और दूसरा आज्ञा को उल्लंघन करने के लिए। जैसे गेहजी ने लालच किया और लालच के द्वारा उसने और एक आज्ञा का उल्लंघन किया, उसने झूठी साक्षी दी, झूठ उसने कहा। उसी तरीके से आप और हमारे जीवन में यदि हम एक आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हम और भी आसान तरीके से बाकी आज्ञा का हम उल्लंघन कर सकते हैं। इसलिए हमें बहुत ही सावधान से अपना जीवन को व्यतीत करना चाहिए, बहुत सावधानी से, ताकि हम परमेश्वर के डर और भय में उसकी आज्ञा को मानते हुए अपना जीवन को हम व्यतीत कर सके। हमने देखा प्रेरित क्रिया 5 में भी वही हालत हुआ, वही दशा हुआ। हनन्याह और सफीरा, उनका जीवन में जो हुआ वो काफ़ी भयानक है, दर्दनाक है। और कहा जाता है 5:11 में सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वाले पर बड़ा भय छा गया। आज आप और हमारा जीवन में ये डर और भय होना चाहिए। जब हम आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो हमें डर होना चाहिए कि उसका नतीजा क्या हो सकता है। जिस तरीके से हनन्याह और सफीरा, उनको प्राण गंवाना पड़ा, गेहजी को नामन का कोड़ आ गया। आज हो सकता है आपका हमारे जीवन में जब हम इन सारे आज्ञा को उल्लंघन करते हैं, हमारे जीवन में क्या समस्या आ सकता है हम नहीं जानते, लेकिन ये निश्चित है कि हमारा जीवन में भलाई नहीं होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर जो आज्ञा हमें दिए हैं हमारे जीवन भलाई होने के लिए, हमारे जीवन भलाई और अच्छाई होने के लिए, हमें आशीषित होने के लिए परमेश्वर ने आज्ञा दिया है। हमें चाहिए कि हम उस आज्ञाओं को हम माने, हम उस आज्ञा को हम पालन करें, ताकि हम एक खुशहाली का जीवन हम प्राप्त कर सके। भाई और बहनों, सचमुच में हमने देखा कि कितना ही महत्वपूर्ण है परमेश्वर का आज्ञा पालन करना। यदि हम देखें सबोपदेशक में, यहाँ हमारे लिए यही वचन दिया जाता है। सबोपदेशक के आखिरी में हम पाते हैं, यहाँ 12:13 में कहता है, सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। भाई और बहनों, आज इस संध्या के समय में, इस विश्राम दिन के आरंभ में, हमें चाहिए कि परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं को पालन करना, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भला हो या बुरी, न्याय करेगा। माननीय श्रोतागण, भाई और बहनों, आज इस संध्या के समय में निश्चित तौर से हमें वो एहसास दिलाता है परमेश्वर के वचन के द्वारा कि हम लोभ लालच ना करें, हम झूठा गवाह ना दें। हम यदि हम उसका आज्ञा उल्लंघन करते हैं, निश्चित तौर से हम अपना जीवन में मुसीबत, परेशानी हम ले आते हैं, और उसका जिम्मेवारी हम खुद है, उसकी जिम्मेवारी हम खुद है। लेकिन कई बार होता है कि हम सवाल करते हैं, हम चिढ़ जाते हैं, दंड असर रखते हैं, हम ये करते हैं, वो हम भला काम करते हैं, लेकिन क्यों मेरे जीवन में परेशानी? भाई और बहनों, आज हमें अपना हृदय और अपना मन को जांचना पड़ेगा। आज हम कहाँ भटक गए हैं, कहाँ हम किस आज्ञा से हम दूर हो रहे हैं, हमें जांचना है आज, और उसके मुताबिक हमें बाकी जीवन को व्यतीत करना है। क्योंकि वचन कहता है कि उसका आज्ञा को पालन करना हमें चाहिए, क्योंकि यही है हमारा संपूर्ण कर्तव्य। हम यदि आदि में हम जाए, जो आज्ञा दिया गया था आदम और हवा को, उसने आज्ञा का उल्लंघन किया और उसका नतीजा
पाप हुआ। और आज हमें यही सिखाया जाता है कि हम आज्ञा को हम पालन करें। आज्ञा का उल्लंघन ही पाप है और पाप का मजदूरी मृत्यु है। इसे चलिए आप और हम अपना बाकी जीवन को परमेश्वर के राहों में रखते हुए, उसके आज्ञा को पालन करते हुए हम अपने जीवन को हम व्यतीत करें, ताकि हम खुद भी आशीषित हो और हमारे जीवन के जरिए और बाकी लोग भी आशीषित हो सके। इसलिए हम चाहेंगे कि आज जितने भी लोग विभिन्न जगह से आप जुड़े हैं, सुन रहे हैं इस संदेश को, ये परमेश्वर का वचन है कि आप और हम उसके डर और भय में हम बने रहें, ताकि उसका आशीष जो है हम अनुभव कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हम उसका आशीष हम लोगों से बांट सके। हम उम्मीद करते हैं आज का वचन जो है आप और हमारे हृदय में वो काम करेगा और हमें आत्मिकता में बढ़ने के लिए हमें सहायता करेगा। ईश्वर आप सबों को आशीषित करे। हम दुआ करते हैं अंत में। महान जीवित परमेश्वर, हम धन्यवाद देना चाहते हैं सुंदर वचन के लिए कि हम लालच ना करें, हम झूठे गवाह ना दें, बल्कि हम तेरे आज्ञा में बने रहें। तू नहीं चाहता कि हम परेशानी में हो, बल्कि तू चाहता है कि हम सारे लोग आशीषित हो। और हम जानते हैं आज की जब हम तेरे आज्ञा को पालन करते हैं, निश्चित तौर से तू हमें आशीषित करेगा, तू हमें आनंदित बनाएगा। पिता, हम चाहेंगे कि तू हमें सामर्थ्य बना, तेरे आत्मा का अगुवाई दे हमें, ताकि हम हमेशा जो है तेरे आज्ञा को हम माने हम, और इस तरीके से हम इस जगत में जब तक हम जीत पा जाते हैं तेरे हम गवाही हो सके। जितने भी लोग आज सुन रहे हैं विभिन्न जगहों से, उनके साथ होना, उन्हें भी आशीषित करना। हम सारे लोग गुनहगार हैं, पापी हैं। हम चाहेंगे हम सारे लोगों के पाप को क्षमा करें, क्योंकि हमने मंगाया यीशु मसीह के नाम से। आमीन।